So just before we start, I thought of myself and David thought of giving a small introduction to these brothers. Most of you know them. और शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा कि मैं और भाई डेविड इनका छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। यद्यपि आप में से कई लोग इन्हें जानते हैं, Some of you may not. We know them for so many years, so we thought of giving you all some inside information. क्योंकि हम इतने वर्षों से इन तीनों को जानते हैं, हमने सोचा कि थोड़ी सी इनके विषय में हम आपको जानकारी दें। So Brother Matthew. Yes. So I know Brother Matthew since I was a small child. और मैं छोटा बच्चा था तब से मैं भाई मैथ्यू को जानता हूँ। And he has taught me Sunday school, youth meeting and also fellowship otherwise also. और उन्होंने मुझे संडे स्कूल में सिखाया है, यूथ मीटिंग में सिखाया है और उसके बाद संगति में भी। He's been with me through hard times, good times. और मेरे जीवन में अच्छे समयों में, बुरे समयों में वो मेरे साथ रहे हैं। A father like figure to me. और मेरे लिए एक पिता समान वो है। And we've been on many coffee dates. और कई बार एक साथ कॉफ़ी पीने का हमने समय बिताया है। Yeah, and he's a good listener. और वो बहुत अच्छे सुनने वाले हैं and a heart for the youth. और जवानों के लिए हृदय रखते हैं। He has 3 children and Auntie Anila wife. उनके 3 बच्चे हैं और अनिला सिस्टर उनकी पत्नी है। Kripa, she's in Dubai, married to Colin. और कृपा जो उनकी बेटी है वो दुबई में है, विवाहित है। Ruth and Rebecca. रूथ और रेबेका। And his pet name, anyone knows his pet name? Rajan Kutti. उनको Rajan प्रेम Kutti, his pet name. So I think only his close relatives or his family members know. उनको प्रेम से उनका पेट नेम राजन कुट्टी कहा जाता है। उनके बस परिवार के नज़दीकी लोग उन्हें ये कहते हैं। And his current hobbies are listening to music, watching sports and news on YouTube. और उनकी हॉबीज़ है खेल को देखना, म्यूज़िक सुनना और न्यूज़ देखना यूट्यूब पर। Well, I kind of wrote it down so that I don't miss any points. और मैं कोई भूलना नहीं चाहता इसलिए मैं सब लिख के लाया हूँ। So, I've known Brother John since 1998, और भाई जॉन को मैं 1998 से जानता हूँ। and I remember the days when I was, and I didn't really have anybody of my own age, but Brother John was pretty much my age at then. और उस समय मेरे आसपास की उम्र का और किसी को मैं नहीं जानता और भाई जॉन उस उम्र के थे। Back in the days, I used to call him Uncle Sabu. और उन दिनों में उनको अंकल सब कहता था। Uncle Sabu. अंकल साबू। And Sabu is his pet name as well. और उनको प्यार से लोग साबू कहते हैं। And not many will know this, but he tutored me when I was in 8th and 9th standard, and in some part of standard 10th as well. और कई नहीं जानते, पर मैं जब 8वीं और 9वीं कक्षा में था तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था और 10वीं कक्षा में भी कुछ समय उन्होंने पढ़ाया है। I was talking to his wife, Sister Vincy, to get a few more extra points to talk about him. और उनके पत्नी सिस्टर विंसी से मैं बात कर रहा था कि उनके विषय में और कुछ मैं जान पाऊँ। And I got to know that before his marriage, he wrote few letters to Sister Vincy, to his wife, and one of the letters had 16 points that he wanted her to remind him of whenever if in case he strayed from his spiritual walk. और उनके विवाह से पहले उन्होंने अपने होने वाले पत्नी से कुछ पत्र लिखे थे और एक पत्र में उन्होंने 16 अलग अलग पॉइंट्स लिखे थे कि अगर वे अपने आत्मिक रास्ते से, आत्मिक मार्ग से भटक जाते हैं तो उनके पत्नी ने उन्हें इन 16 चीज़ों की याद दिलानी चाहिए। Some points really blessed me, and I just want to mention those points. और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसने वाकई मुझे बहुत आशीषित किया, मैं वो बांटना चाहूँगा। And it blessed me not because we don't know these points, it's because I was really encouraged to know that he was so conscious of the fact that, I mean, before marriage he was conscious of it, and I have seen, and all of us have seen that he's been conscious of these points ever since. और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने लिखी है, इसलिए मैं नहीं आशीषित हुआ क्योंकि हम इन्हें नहीं जानते या पहले बार मैं सुन रहा हूँ, पर ये देखिए कि उनके विवाह से पहले भी उन्हें कितना एहसास था इन बातों के विषय में और अभी भी उनके लिए हम जो उन्हें जानते हैं कितने महत्वपूर्ण है उनके जीवन में ये चीज़ें। These points were, okay, I'll just read out the points. Let us be ready to suffer for the sake of Christ. और मैं कुछ पढ़कर दिखाऊंगा, वहाँ लिखा है कि आइए हम मसीह के लिए दुख उठाने या सताव को झेलने के लिए तैयार रहे। Point number 2, I really wish we could spend time studying the word together. और दूसरी चीज़ है, मैं वाकई ये चाहत रखता हूँ कि काश हम और समय परमेश्वर के वचन को साथ उसका अध्ययन करने में बिताएं। Third point, if at any time I complain about good tasty food, then remind me that I'm becoming a slave to food god.
और अगर मैं कभी भी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन न मिलने की वजह से मैं अगर शिकायत करने लगूं, तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि उस समय जब मैं ये शिकायत कर रहा हूं, तो मैं भोजन को अपना परमेश्वर समझकर उसका गुलाम बन गया हूं। Point number 4, if the Lord calls us to any remote place to serve Him, let us always be ready. और चौथी चीज, अगर परमेश्वर किसी भी दूर की जगह हमें सेवा करने के लिए भेजे, तो आइए हम तैयार रहे वहां जाने के लिए। And the last point, if I ever enforce my hard rules in the house, remind me that I'm becoming a Pharisee. और अगर मैं कभी भी घर में बहुत ही कठोर नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि मैं एक फरीसी बन रहा हूं। Dear brother, I've known you for quite some time now, and I know that you've lived through these points. और प्रिय भाई, Thank you. मैं आपको कई समय काफी लंबे समय से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि इन विषयों के अनुसार आपने अपना जीवन बिताया है। I still call this brother Uncle Sabu. मैं आज भी इनको अंकल साबू कहता I हूं। mean, many years after I came to know that his real name is John George. और कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि उनका सच्चा नाम तो जॉन जॉर्ज है, Yeah, but we've actually known him by brother Sabu. पर हम उनको साबू अंकल के नाम से ही जानते हैं। And we have brother Abu here in the center. और हमारे बीच में यहाँ भाई अबू बैठे हैं। He's another father figure to me. ये दूसरे एक व्यक्ति है जो बिल्कुल मेरे पिता समान है। A very close friend, a dad-like figure. एक बहुत ही नजदीकी मित्र है, मेरे पिता के समान वो एक व्यक्ति है। I've seen Uncle. He is transformed in himself into a servant. और मैंने उनको देखा है कि इतने वर्षों में उन्होंने अपने आप को रूपांतरित करके एक सेवक में वो बदल चुके हैं। We spoke about progression yesterday, and I've seen him progress. और कल हमने बात की कि आत्मिक जीवन में उन्नति करने के विषय में, और मैंने उनके जीवन में वो उन्नति देखी है। And it's a wonderful example learning from the elders. और ये एक उत्तम उदाहरण है कि हमारे प्राचीनों से हम ये सीख सकते हैं। I totally confide in Uncle. और मैं पूरा उन पर भरोसा रखकर मेरी सारी निजी बातें भी उन्हें मैं बताने का भरोसा रखता हूँ। He is a good mentor and a counselor. वो एक बहुत अच्छे मेंटर अर्थात मेरे मार्गदर्शक है और सलाहकार है। He has the quality to perceive things in people. Like he can see things in people and let you know if there's an issue. और उनमें ये गुण है कि वो लोगों को परख पाते हैं कि उनमें कोई समस्या है क्या, और फिर वो आपको उसके विषय में बताते भी हैं। Auntie Lizzie, his wife, and he has 2 children. और लिसी आंटी जो उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं, Elizabeth and Joshua. एलिजाबेथ और जोशुआ। And Uncle's favorite Bible character is Timothy. और बाइबल में जो सबसे पसंदीदा उनका बाइबल कैरेक्टर है वो तिमोथियुस है। And his favorite hobbies is scraping coconut and cutting vegetables. And making juices. और उनका सबसे पसंदीदा काम सब्जी काटना और नारियल को स्क्रैप करना है। I think I need to learn from that too. उससे भी मुझे सीखने की ज़रूरत है। So let's jump on to the questions. और आइए हम प्रश्नों में जाएंगे। So we'll have the questions on screen in English and Hindi. और स्क्रीन पर ये प्रश्न जो है इंग्लिश और हिंदी में होंगे। I feel so important. I feel so important. By the way, is it being televised? Is it being televised? Yes, it is live. Live television. Live. So before this session, we had the questions sent to these brothers. So we didn't want them to think on the spot. So brothers have prepared so that it would be precise, concise. और इस सत्र से पहले ही हमने सारे प्रश्न इनको भेज दिए थे ताकि उनको समय पर सोचना ना पड़े, और इसलिए वो पहले से ही उन प्रश्नों के विषय में सोच कर आए हैं। So we'd like to keep it really short. We are less on time. और क्योंकि समय की कमी है इसलिए हम उसे बहुत कम समय में करना चाहेंगे। So let's have the first question on screen. और पहला प्रश्न हम स्क्रीन पर देखेंगे। So the first question is to Brother John George. What पहला book, प्रश्न भाई जॉन के लिए है। what book or story has had the biggest impact on you and why, aside from the Bible? और बाइबल को छोड़कर ऐसी कौन सी पुस्तक है या कौन सी कहानी है जिसने आप पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है और क्यों? Yeah, I am a very poor reader. मैं शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि पढ़ने में मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। I hardly read any books. मैं कोई भी किताब शायद ही पढ़ता हूँ। I prefer hearing others who have read books, especially my wife.
मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं दूसरों को सुनूं जो किताबें पढ़ चुके हैं, विशेषकर मेरे पत्नी से। She will read through and she will summarize and tell me. वो सारी किताबें पढ़ती है और फिर संक्षिप्त में मुझे उन किताबों के बारे में बताती है। And I've heard many from Brother Zach through many conferences we have attended. और कई कॉन्फ्रेंसेस में भाई जैक से मैंने कई किताबों के विषय में सुना है। But two things which touched me, which came to my mind when I thought of answering this question was, one was Pilgrim's Progress. और दो चीज जो मेरे मन में आई जब मैं इस प्रश्न के विषय में सोच रहा था वो है मसीह मुसाफिर, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के विषय में। I have not read the full book, the thick book. I have not. मैंने- As I said, I'm a poor reader. वो जो बड़ी मोटी सी किताब है मैंने उसको पूरा तो नहीं पढ़ा है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ। But I like the comic. I don't know whether you have read that comic book. It's a small book of the same thing. You can, and also we have Brother Zach's one video, Hindi as well as English, where he's describing that step by step with small clippings. पर उसी किताब की एक कॉमिक अवेलेबल है और मैंने उस कॉमिक को पढ़ा है और भाई जैक ने भी उसी किताब के विषय में इंग्लिश में और हिंदी में भी समझाया है कि उस किताब में क्या क्या लिखा है। Yeah, that is one book which has really touched me because it shows our real condition when we go through this Christian life. और Is वो एक किताब है जिसने वाकई मुझे छुआ है क्योंकि वो हमारी वास्तविक अवस्था को दर्शाता है जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं। Yeah, how we go into despair. There is a giant called despair who wants to always confine us in the cage of discouragement. कैसे हम निराशा या आशाहीन हो जाते हैं और वो जो आशाहीन होने का राक्षस है वो हमेशा एक पिंजरे में हमें बंद करना चाहता है हमारी आशा को लेकर। Yeah, that was one book, and the second is a book by Watchman Nee called Song of Songs. और दूसरी एक किताब वॉचमैन नी द्वारा लिखी है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। That is the only book I remember I have read. ये इकलौती पुस्तक मुझे याद है जो मैंने पढ़ी है। And that talks about the connection or the love relation between Lord and us. और वो पुस्तक बताती है कि प्रभु में और हमारे बीच जो प्रेम का संबंध है उसके विषय में। And I want to be more and more gripped with that love towards Him. और प्रभु के प्रति उस प्रेम से मैं अधिक और अधिक जकड़ा जाना चाहता हूँ। Yeah, that is the only thing which will keep us strong till the end. वो इकलौती चीज है जो अंतिम तक हमें बहुत मजबूती से खड़ा रखेगी। Thank you. Thank you, brother. I have answered. Yeah, this is for Brother Matthew. Who has been a spiritual hero in your life? ब्रदर मैथ्यू के लिए प्रश्न है, आपके जीवन में आत्मिक नायक, हीरो या आदर्श कौन रहा है? Yeah, I like, I think David Wilkerson is a big hero for me. और डेविड विल्करसन जो है वो मेरे लिए बहुत ही बड़े एक नायक या हीरो रहे हैं। I think of his courage, मैं उनके बहादुरी के बारे में सोचता हूँ his attitude towards sinners, और पापियों के प्रति जो उनका मनोभाव या स्वभाव उसके बारे में, and his transparency. और उनकी जो पारदर्शिता है उसके बारे में। I want to be like that. I want to be transparent in my life. और उनके समान मैं बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में और भी पारदर्शी बनना चाहता हूँ। And I find that there is such freshness in whatever he speaks. और मैं देखता हूँ कि जो कुछ वो कहते हैं उसमें इतनी ताजगी है। I have other heroes like Brother Zach Punan and Billy Graham. और भी मेरे अन्य हीरो है, जैक पुनन है और बिली ग्रैम। Yeah. Thank you, Brother Matthew. This is to Brother Abu. ये भाई अबू के लिए है। What do you think the purpose of life is? और आपकी राय, आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? Yeah, my thinking is a purpose of my life is to fulfill all of God's plans for my life. और मेरी राय, मेरे विचार के अनुसार परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के सारी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा करना है। I used to think like this. मैं इस प्रकार सोचा करता, There should not be a time in future that I regret looking back. और भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं आना चाहिए कि पीछे देखकर मैं उसके बारे में कभी पछतावा करूं। That I did not do something which God wanted me to accomplish. और जो परमेश्वर मुझसे करवाना जो चाहता था मैं उसे नहीं कर पाया। So that thought comes to me. I don't want to regret that the Lord wanted me to do something now, but I miss it.
and I regret about it later. और ये पछतावा मेरे अंदर कभी न रहे कि परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ काम करवाना चाहता था पर मैं उसको चूक गया और बाद में उसके संबंध में पछतावा करता। In the same way, I think I should not be engaged in something now and waste away my time and regret about it later. और उसी तरह से अभी वर्तमान हालात में अपने जीवन को किसी चीज़ के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपने समय को बर्बाद करूँ, बाद में मैं उसके ऊपर पछतावा कभी करूँ। Meaning I am involved in do things which God did not want me to do. इसका मतलब मैं अपने आप को ऐसी चीज़ों के अंदर मैं अपने आप को लाऊंगा जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने समय को उसमें लगाऊं। And regret about it later. और अंत में बाद में उसके बारे में पछतावा करूं। Yeah, it's my prayer that regularly I pray, Lord, please help me to try to live a life that is trying to please you. और निरंतर मेरी यही इच्छा होती है, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु निरंतर मेरी सहायता कर ताकि तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन मैं जी सकूं। So in short, fulfilling all of God's plans for our life, that is the best thing we can desire. और यही सर्वोत्तम इच्छा हम कर सकते हैं कि परमेश्वर की सारी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना। Thank you, brother. Next one for brother John. How do we deal with regrets? हम पछतावे का सामना कैसे कर सकते हैं? Yeah, dear brothers and sisters, we all have made umpteen number of mistakes. प्रिय भाई और बहनों, हम में से प्रत्येक ने कई कई गलतियां की हैं। And if we just think about that and we start counting that or we start meditating on that, we will stand there and we'll never move forward. अगर हम अपनी गलतियों को गिनना शुरू कर दें, अगर हम अपने गलतियों पर ही सोचकर मनन करना शुरू कर दें, फिर हम वही के वही खड़े होंगे, हम थोड़ा सा भी आगे नहीं जा पाएंगे। One example which comes to my mind when I think about failure and getting up and walking. एक उदाहरण जो हमेशा मेरे मन में आता है जब मैं सोचता हूँ असफल होने के विषय में, गिरने के विषय में, फिर खड़ा होकर आगे चलने के बारे में। Think of a mother with children and her husband has died, a poor widow. एक गरीब विधवा के विषय में सोचिए जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका एक छोटा बच्चा है। The husband has died and she lives on maybe daily living, sells vegetables and that's how she is living. और उसका पति तो मर चुका है, दिन प्रतिदिन उसे कोई सब्जियां देता है, उस प्रकार से वो सब्जियां बेचती है और उस प्रकार वो जी रही है। How many days do you think that lady will stay at home? She has to feed 2 children. कितने दिन वो स्त्री घर पर बैठ सकती है? उसको तो 2 बच्चों को बड़ा करना है। Her only hope was her husband. He also died. उसकी एक ही आशा थी उसका पति और वो भी मर चुका। How many days will she wait at home mourning and crying, oh, everything is gone, everything is gone? How many days will she wait? फिर ऐसी जो स्त्री है, कितने दिन वो घर बैठेगी, शोक करेगी, विलाप करेगी कि सब कुछ खत्म हो गया? कितने दिन वो इंतजार करेगी? If tomorrow she doesn't sell vegetables, she doesn't have anything to feed her children. अगर कल वो सब्जियां न बेचे तो उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। She cannot wait sitting crying over her deceased husband. वो इंतजार नहीं कर सकती, वहां रुककर वो शोक नहीं कर सकती कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी। She gets up next day, I have to feed my children. Yes, let me stand up, let me sell the vegetable and feed my children. वो अगले दिन उठ जाती है और वो कहती है नहीं मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है। अगले दिन वो बाहर जाती है, सब्जियां बेचने लगती है। Many of you are sisters, you are sick, you are not well. Do you not get up to make breakfast, lunch and dinner for your child who has to go to the school? आप में से कई बहनें हैं, कई बार आप बीमार होते हो, बिस्तर में होते हो, क्या आप तब भी नहीं उठ खड़े होते अपने बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करने के लिए, उन्हें स्कूल भेजने के लिए, उनको भोजन बनाने के लिए? So I was thinking it is something same. When I fail, I have regrets. I don't sit there mourning and getting discouraged. I get up because there is need. There is need in the church, there is need in the home, there is need in the office. I need to get up. I cannot remain in my sadness. I need to overcome because things are to be met. और मैं वैसे सोच रहा था हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो कितने समय हम वहां रुक सकते हैं? हम नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि बाहर एक जरूरत है, मेरे परिवार में जरूरत है, कलीसिया में जरूरत है, मेरे कार्यस्थल में जरूरत है और उन जरूरतों को पूरे करने की आवश्यकता है। Yeah, may Lord help all of us. और प्रभु हम सबकी सहायता करे। Next question for Brother Matthew. What is the place of God's law in a Christian life?
are we free to disobey it? Are there areas where a person uses a wrong view of law to justify disobedience? और मसीह जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था या नियम का क्या स्थान है? क्या हम इसकी अवज्ञा या अनाज्ञाकारिता करने के लिए स्वतंत्र है? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई व्यक्ति अनाज्ञाकारिता को सही ठहराने के लिए व्यवस्था या नियम के गलत दृष्टिकोण या समझ का उपयोग करता है? There are 3 sub questions here. और यहाँ पे 3 प्रश्नों की सूची है. So first one is, what is the place of God's law in the Christian's life? और पहला, मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था या नियम जो है उसका क्या स्थान होना चाहिए? For me, I can say that God's law is the foremost. I want it to be the foremost in my life. और मेरे लिए परमेश्वर की व्यवस्था जो है सबसे मुख्य बात मेरे जीवन में होनी चाहिए. The Bible says the law of the Lord is perfect, converting the soul. It is more to be desired than gold, and sweeter also than honey. और परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है और सोने से और मधु से भी चाहने योग्य है. The next one is, are we free to disobey it? और क्या हम स्वतंत्र हैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के लिए? So God has given us all a free will, so we can choose to disobey. और परमेश्वर ने हमें एक मुक्त इच्छा को दिया है तो हम अनाज्ञाकारिता करने का चुनाव कर सकते हैं. But it will be only to our peril. और ये हमारे ही स्वयं की इच्छा या जो नाश करने के लिए होगा. The Bible says rebellion is as the sin of divinity. और Divination. बाइबल में लिखा है कि जो अनाज्ञाकारिता जो है या बलवा करना है वो जादू टोने के समान है. The next one is, are there areas where a person uses a wrong view of the law to justify disobedience? और जो अंतिम जो ये सब प्रश्न है, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अवज्ञा को सही ठहराने के लिए व्यवस्था के गलत दृष्टिकोण का उपयोग करता है? We can say yes, people, we can all do that. और हम कह सकते हैं हाँ, हम सभी ये करते हैं. But that is only if we do not fear God ये तभी हम करते जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते and love God. और परमेश्वर को नहीं प्रेम करते. If we fear God and if we love God, we will not try to take that route. और यदि हम परमेश्वर का भय मानते उससे प्रेम करते हैं तो हम उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे. Thank you, brother. The next question is for Brother Abu. In our church we have elders, so we want to know what does elder mean, and what is an appropriate way of describing our church elders when we speak to outsiders like different churches or anyone else. और ये सवाल जो है भाई अबू के लिए, एल्डर या प्राचीन का क्या अर्थ होता है? कलीसिया के अगुवों का वर्णन करने का एक सही तरीका क्या है या कैसा होना चाहिए? Yeah, first of all, elders are not perfect people. और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एल्डर्स या प्राचीन जो है वो सिद्ध लोग नहीं हैं. They are normal human beings. वे सामान्य साधारण व्यक्ति ही है. The one picture we can say elders in a local church can be the one of the relatively more mature person. और जो एल्डर या प्राचीन जो है तो उसका चित्रण करने के लिए एक व्यक्ति वो जो ऐसा होता है जो बहुत ही सयाना या समझदार होता है. At the same time, he has a concern for others. उसी के साथ दूसरों लोगों के लिए एक चिंता या ख्याल से भरा हुआ मन उनका होता है. He is not perfect, he is also growing. वो स्वयं सिद्ध नहीं है, वो भी स्वयं उन्नति कर रहे हैं. Yeah, one picture we can see, even here we can see there are children. One is a 5-year-old boy and maybe his brother or sister maybe 4 years. और यहाँ पर यदि हम उसका चित्र देखें, यदि ये 5 साल का बेटा है, बच्चा है, उसे फिर उससे कम उम्र का एक बच्चा है. We can see that older boy holding the hand of the younger one trying to make him to walk, help to walk. We can see that. तो हम देखेंगे जो बड़ा बच्चा है छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसको चलते हुए उसकी सहायता करता है. So that is a picture of being an elder, meaning it's a relatively more mature person. और इसी चित्रण का उपयोग हम कर सकते हैं एल्डर या प्राचीन को समझने के लिए. Another example for understanding, we can say like a father. और दूसरा प्राचीन को समझने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं कि पिता के समान व्यक्ति Who is interested in the welfare of others. और दूसरे लोगों की भलाई के अंदर उनकी रुचि होती है. And the elder is not supposed to just preach his knowledge.
और जो एल्डर जो होता है वो केवल अपना ज्ञान या प्रचार ही नहीं करता है, and also rule over others using his authority. और अपना जो अधिकार है, अपना सामर्थ्य लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है, उतना ही नहीं, But the biblical pattern of being an elder is to lead by example. लेकिन बाइबल के सिद्धांत के अनुसार एल्डर या प्राचीन वो है जो अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा लोगों की अगुवाई करता है। This is for Brother John George. भाई जॉन के लिए, How can a man, woman maintain a great relationship with each other? एक पुरुष और स्त्री अपने एक दूसरे के बीच एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता कैसे बनाए रख सकते हैं? I believe we are talking about husband and wife, और यहाँ पति पत्नी के रिश्ते के विषय में हम बात कर रहे हैं। and what comes to my mind is one thing which helped me in my marriage relationship with my wife was और एक चीज जिसने मेरे विवाहित जीवन में मेरे पत्नी के साथ मेरे रिश्ते में मेरी सहायता की वो ये थी, is to understand that see God made two into one. और बाइबल जैसे बताती है परमेश्वर ने दो लोगों को एक बना दिया। Both are one body, इसका one flesh. इसका मतलब दोनों एक ही शरीर है। Then I start understanding that my wife is my own self. Just like I love my body, I take care of mine. I need to love my wife. She is my own. फिर वो जो मेरी पत्नी है वो जब मेरा ही शरीर मैं समझ जाता हूँ तो फिर जैसे मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ, अपने शरीर के विषय में चिंतित रहता हूँ, मुझे उसके लिए भी मुझे वही करना है क्योंकि वो मेरी ही है, मेरे ही शरीर का हिस्सा है। Will I ever put myself down? क्या मैं कभी अपने आप को नीचा दिखाऊंगा? Never. कभी नहीं। The same I will never put my wife down बिल्कुल वैसे ही मैं कभी अपने पत्नी को नीचा नहीं दिखाऊंगा in front of anyone. किसी Her के भी father, सामने। my father, her relatives, my relatives. I will never put my wife down. उसके पिता के सामने, मेरे पिता के सामने, उसके रिश्तेदारों सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने मैं कभी अपने पत्नी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, उसे तुच्छ नहीं समझूंगा। Because we both are one. We are one. She is me. I am he. Means we are one. क्योंकि हम दोनों एक ही है, वो मैं ही हूँ, मैं उसके साथ हूँ, हम दोनों एक ही है। Many times we have heard it being preached in the church that husband and wife should have one purse. और कई बार हमने कलीसिया में ये सुना है कि पति पत्नी का एक ही पर्स, एक ही बटवा जैसा होना चाहिए। What do we mean by that? Have one purse means all that I earn or have is hers and all that hers is mine. और एक ही पर्स या बटवा होने का मतलब क्या है? जो कुछ मैं कमाता हूँ वो उसका है, जो कुछ वो कमाती है वो मेरा है। Dear brothers and sisters, we have given our bodies to one another. That's the connection God has built in union in marriage. प्रिय भाई और बहनों, हमने एक दूसरे को अपने शरीर दिए हैं। इस प्रकार का एक संबंध परमेश्वर ने विवाह के अंदर रचा है। And such so silly when a husband holds his money with him, saying, "No, this is my money, that is your money." What are we? Where are we going, dear brothers? That is not a Christian marriage. और इसलिए ये बहुत ही मूर्खता भरी बात है अगर कोई पति कहता है कि नहीं ये मेरा पैसा है, वो तेरा पैसा है, ये मसीही विवाह नहीं है। Yeah, there may be cases where the husband is wayward and then you have a different stance is okay. But as far as a normal marriage is concerned, everything should be one. ऐसी घटनाएं हो सकती है जहां जो पति है वो शायद मसीही नहीं है और फिर चीजें अलग है, पर एक स्वाभाविक जो मसीही विवाह है उसमें सब कुछ एक होना चाहिए। Yeah, I believe that will build that relationship of oneness and everything coming in together. और मेरा विश्वास है कि ये समझ हमारी सहायता करेगी वो एकता की आत्मा को लाने के लिए और सारी चीजों को एक साथ बांटने में। Yeah, next one is Brother Matthew. What are some practical ways of a husband and wife who can build their home? और ये भाई मैथ्यू के लिए है, अपने घर को बनाने के लिए एक पुरुष या महिला के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके कौन से हो सकते हैं? The home has to be a peaceful home. और एक घर जो होता है वो एक शांतिपूर्ण घर होना चाहिए। And in married life, the relationship between the husband and wife is very important for a peaceful home. और एक वैवाहिक जीवन के अंदर पति और पत्नी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शांतिमय एक जीवन रहे। And then there are the children. The parent-children relationship also should be a good thing. और बच्चों के साथ जो संबंध है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। Whatever I'm saying are very idealistic. और जिस बात से जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं मानता हूँ।
I may not fulfill all those things, और शायद मैंने उन सारी बातों को नहीं पूरा किया। but time must be spent in the family ये सारी आदर्श जैसी बात है और आने वाले समय में देखता हूँ with the wife and the children. With the wife and the children, जो बच्चे हैं और पत्नी है, time must be spent to attend to many things in the home. और जो घर में बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए उन समय को बिताना, Love, kindness, unselfishness, और प्रेम दया है, जो निस्वार्थ जो स्वभाव है and उसको, sacrifices helps to build the home. और जो बलिदान जो हम करते हैं वही परिवार को बनाने में, निर्माण करने में सहायता करता है। I want to do that. in और my मैं life. उसको करना चाहता हूँ। Next question to Brother Abu. ये भाई अबू के लिए, Please explain how you have brought a balance between Genesis 2:24 and Exodus 20 verse 12 in your life. और आप कृपया हमें बताएं कि आपने अपने जीवन में उत्पत्ति 2:24 और निर्गमन 20:12 के बीच संतुलन कैसे बनाया है। So Genesis 2:24 is उत्पत्ति 2:24 जो है वो ये है, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। And Exodus 20 verse 12 says, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. निर्गमन 20:12 लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। Yes, the Lord was gracious to me to give an understanding early in our family life. और परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी था मेरे जीवन के पारिवारिक दिनों में, शुरुआती दिनों में इस समझ को मुझे देने में, about the importance of unity between husband and wife. और खासकर पति और पत्नी के बीच में एकता के बारे में। So I realized this is the most important relationship for me in this world. और इस संसार के अंदर पति और पत्नी के बीच का संबंध, मैंने इस बात को समझा, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। So I have told my wife, you are the most important person for me in this world. और मैंने मेरी पत्नी से कहा है कि इस संसार भर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे लिए तुम हो। Not my parents. मेरे माता पिता नहीं। And I remember I told my parents also that you should not interfere in my family. अब मुझे याद आता है मेरे माता पिता को ये कहते हुए मैंने कहा कि मेरे परिवार के संबंधित जो भी मामले हैं उसके अंदर आप दखल अंदाजी न करें। And at the same time, I gave my parents confidence that we will look after you when you are old. वहाँ एक साथ मैंने मेरे माता पिता को ये भी भरोसा दिया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे हम आपकी देखभाल करेंगे। So actually my parents were with us during the last 5 years of their life on earth. और मेरे माता पिता जो थे उनके जीवन के अंतिम 5 साल जो थे वो हमारे साथ रहे थे। And I felt my wife received enough confidence that I am with her. और मेरी पत्नी, मैंने इस बात को देखा कि मेरी पत्नी को ये समझ आया कि मैं पूरी तरह से मेरी पत्नी के साथ हूँ। And it was my responsibility to ensure that there is no conflict between my parents and my wife. और ये मेरी जिम्मेदारी तब थी कि मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के बीच में कोई संघर्ष न हो। So I found without in any way affecting our unity in between me and my wife at home. और मैंने इस बात को देखा कि मेरी और मेरी पत्नी हमारी एकता को बिना कोई दखल या उसको कोई कुछ भी दखल किए बिना, Even those years when those 5 years when my parents were their age, they were sick, they were living with us. और उन सालों के अंदर 5 साल जब मेरे माता पिता बीमार थे और हमारे साथ वे रहते थे, It went very well for us. और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। And that was not time. We had even financial constraints during those period. और उस समय दौरान हमारे कुछ आर्थिक संघर्ष भी थे। Even then things went very well. लेकिन इसके बावजूद भी चीजें बहुत ही अच्छी और भली रही। I always thought the key remained, my wife always thought she had the confidence that I am with her. और यहाँ पर जो चाबी जो मैंने इस बात को समझा, मेरी पत्नी को ये भरोसा देते हुए कि मैं उसके साथ हूँ। And we
especially she did a very best possible to look after our parents. और उन्होंने भी बहुत ही कड़ी मेहनत या अच्छे से सारे प्रयत्न किए मेरे माता पिता की देखभाल करने के लिए. And while we looked after our parents, they knew that we would not welcome that interfering in our family life. और जब हमारे माता पिता की देखभाल हम करते थे तो हमारे माता पिता भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि हम किसी भी बात के अंदर उनकी दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेंगे. So my wife had extremely good relationship with my parents when they were living in our own small flat. और जो हमारा छोटा सा घर था, मेरे माता पिता जब हमारे साथ में रहते थे, मेरी पत्नी उनके साथ बहुत एक अच्छा संबंध उनके साथ था. Thank you, brother. Very insightful. Next one's for Brother John. And this is very important to me too. How do you and your wife practically ensure that you both remain in fellowship and have time to spend with each other, especially with all the responsibilities at home, office, and church as well? ये भाई जॉन के लिए आप और आपकी पत्नी ये कैसे सुनिश्चित करते हो व्यवहारिक रूप से कि आप दोनों संगति में रहे, और विशेष रूप से जबकि हमें घर में, कार्यालय में, चर्च में सारी जो आवश्यक जिम्मेदारियां हैं उनके बीच में भी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए समय को आप कैसे सुनिश्चित करते हो? Yeah, I want to start saying that this is one area where I have messed up many times. और मैं शुरुआत में यही कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं कई बार इस क्षेत्र में गिरा हूँ या मैंने उसमें सही से जो करना चाहिए वो नहीं किया है. Yeah, something needs to be done in the church and you get so involved that you forget your family. और कुछ कलीसिया में करने की आवश्यकता होती है, आप उसमें इतने उलझ जाते हो कि आप आपके परिवार के विषय में भूल जाते हो. Or you are stuck in the office work, you are in a out camp there and you forgot to call your wife. या ऑफिस के काम में आप ऐसे उलझे हुए हो, आप दूर कहीं कैंप में हो, आप अपने पत्नी को फोन करना ही भूल गए. We all make mistakes. हम सब गलतियां करते हैं. What is the solution? इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? When you return back or you come back, start with a sorry. जब आप वापस लौट आओ तो एक सॉरी कहकर शुरू कीजिए. We need to build back. When you got time, you were stuck there. Now you got time, spend time with your family. क्योंकि आज आप जाओ, आपको वहीं से फिर एक बार उसे बांधने की शुरुआत करनी है. तब आप वहां थे, आप समय नहीं बिता पाए, आज आप वापस आ गए हो तो आज आपको समय बिताना है. I still remember the number of times I made my wife cry because I will come very late from office. मुझे याद है कई बार मैंने अपने पत्नी को रुलाया क्योंकि मैं अपने दफ्तर से, ऑफिस से बहुत लेट से घर लौटता था. That too, especially when we are just married. और वो भी उस समय जब हमारा विवाह कुछ तभी हमारा विवाह हुआ था. And when you come home, she is literally sobbing. और जब मैं घर आता तो वो रो रही होती थी. And either I can become angry at her or I can become sympathetic to her. और उस समय मेरे पास दो चुनाव है, या तो मैं उस पर गुस्सा हो जाऊं या फिर मैं उसको सहानुभूति दिखाऊं. It took me time to understand that she needs me, that is why she is crying. और मुझे कुछ समय लग गया इस बात को समझने में कि उसको मेरी जरूरत है, इसलिए वो रो रही है. And whenever we have such things, it is better to set things right. Maybe you are stuck too much with the church that you are not spending, and she is saying, no, wait, listen to her, go back to her. और ऐसे समय है जब हमें चीज़ों को सुलझाना है, उन्हें सही करना है. शायद आप कलीसिया में इतना समय बिता रहे हो कि आप अपने पत्नी के साथ समय ही नहीं बिताते, और वो कहती है कि नहीं अब रुक जाइए, तो उसे सुने और वापस उसके पास लौटिए. Yeah, she is our helper. वो हमारी सहायक है. Yes, so don't ignore her. और उसको नजरअंदाज ना करें. We were looking at that verse in 1 Peter saying, live with your wife in an understanding way. और पहले पत्रस में जो वो वचन है हम उसको जानते हैं जहाँ लिखा है कि अपने पत्नी के साथ समझ के साथ रहो. When does that understanding go away between husband and wife? और पति पत्नी के रिश्ते में वो उन दोनों के बीच की वो समझ जो है वो कब चले जाती है? When either the husband or the wife ignores the second person's opinion. No, leave it, I will not discuss. ये तभी होता है जब पति या पत्नी अपने जीवन साथी के राय को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते कि नहीं, मैं राय ही नहीं लूंगा, मैं कोई बात ही नहीं करने वाला. Yeah, if we resolve to talk and come everything, there is a solution. अगर हम निश्चय करें कि हम एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सारी चीजों का हल हमें मिल सकता है. Then she herself will say, yeah, go ahead, do it. और फिर वो खुद आपसे कहेगी ठीक है अब आप जाओ, वो काम कर लो, खत्म कर लो. Yeah, God has been so good that God has given us so wonderful wives who are supportive.
that is how these brothers all have been able to do whatever God has helped them to. परमेश्वर इतना भला रहा है कि बहुत ही सहयोग देने वाले सहायता देने वाले पत्नियां हमें दिए, उसी के वजह से ये सारे भाई जो है ये काफ़ी कुछ कर पाए. Without their help, we cannot do what we are. और हमारे पत्नियों की सहायता के बिना हम वो नहीं कर सकते जो हमने किया है, या आज हम जो है वो हम नहीं हो सकते थे. Did I answer? Thank you, brother. This is for Brother Matthew. ये भाई मैथ्यू के लिए है. How can a married man, woman, avoid sexual temptation? कैसे एक विवाहित पुरुष या स्त्री एक सेक्सुअल टेम्पटेशन या यौन प्रलोभन को से कैसे बच सकते हैं? I would say is that even after marriage, we can be attracted to the opposite sex. और विवाह के बाद में भी एक पुरुष या स्त्री दूसरे जो पुरुष या स्त्री उनके तरफ वे आकर्षित हो सकते हैं. That is not abnormal, but it is normal. और ये असाधारण नहीं पर ये साधारण बात है. Because in our flesh, that temptations are there. क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये प्रलोभन या परीक्षण होता है. But as with every sin, if we walk in the Spirit, और जैसे इन हर एक पाप के साथ हम जब परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, we will not carry out the desires of the flesh. तब हम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे. So the thing is that temptations will be there, but we can. So it is one of the important thing is in our youth itself. We are born again in our youth. To overcome this, it will be a great help in married life. और खास करके प्रलोभन तो जरूर रहेंगे, लेकिन जब हम जवान हैं तभी अगर एक क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं तो बाद में विवाह के बाद इससे बहुत सहायता मिलेगी. Some of the principles for overcoming this temptation, Billy Graham's famous saying is that, or his teaching is that, not be alone with the opposite sex और बिली ग्राम in a particular place. और बिली ग्राम जो है वो इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर विजय पाने के लिए कहते हैं कि किसी भी स्त्री या जो आपके विरोधी जो लिंग है उनके साथ कोई भी जगह पर अकेले ना जाए या अकेले ना रहे. And when we are at work, then maybe we have to do with the opposite sex. और जब हम कार्यस्थल पर होते हैं तो हमारे जो सहयोगी स्त्री या पुरुष उनके साथ काम जरूर करना पड़ता है. Sometimes we feel an attraction towards someone. और कई बार हो सकता है कि किसी के प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं. That time we have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान रहना है. That will be like a warning for us. और ये हमारे लिए एक संकेत के समान, एक सूचना के समान है. We must try to stay away as much as possible. जितना हो सके अधिक हमें उनसे अलग या दूरी बनाए रखना है. Except for the business. और कार्य के जितना कार्य से संबंधित है उतना And ही. as we cry to the Lord for purity, then we will be safe. और जब हम परमेश्वर के लिए पवित्रता शुद्धता के लिए हम मांगेंगे तब हम उससे बचेंगे. So it's not just the external act, but in the thought life, nothing should be that should be clean. और बाहरी केवल नहीं चीजें नहीं, लेकिन हमारे भीतरी विचार भी जो है वो शुद्ध होने चाहिए. Then only we can progress in the Lord. और तभी हम परमेश्वर में उन्नति कर पाएंगे. And the Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा. The next one is for Brother Abu. Until what age is the rod of discipline best used for children, or rather, when do we stop using it? ये भाई अबू के लिए है. अनुशासन की छड़ी का सबसे अच्छा उपयोग किस उम्र तक किया जाता है और इसका उपयोग कब बंद करना चाहिए? I think it is better to use the rod of discipline on our children till they are about, say, 10 years. और अनुशासन की छड़ी जो है उनको शिक्षा करने के लिए जब तक वे 10 साल की उम्र के हैं तब तक उपयोग किया जा सकता है. By then they start developing their personality, their individuality. और उस उम्र के बाद वे अपना व्यक्तित्व जो है वो उनका निर्माण होना आरंभ हो जाता है. After that age, it may be best to use verbal discipline than using a rod. और 10 उम्र के बाद ये अच्छा होगा कि हम उनको शब्दों के द्वारा उनको हम अनुशासन करें, न कि छड़ी के द्वारा. Because grown up children will feel humiliated when we use rod, and it may discourage them, it may make them more और rebellious maybe. और क्योंकि जो बड़े बच्चे होने लगते हैं तब यदि हम उनको छड़ी से उनको शिक्षा देते हैं तो वो बहुत ही अपमानित उनको महसूस होगा और उससे बढ़कर वो आगे वे जाके बलवा करने वाले भी बन सकते हैं.
Thank you. This is for Brother John George. What is or was your relationship with your employer like? How did you get along with your co-workers and employees? आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता कैसा था, अब कैसा है, और आपके जो सहकर्मी हैं या आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहे हैं? Yeah, both we have a base in God's word. और इन दोनों के लिए ही परमेश्वर के वचन में हमें आधार है कि हमारा संबंध कैसा होना चाहिए. When we talk of our boss, employer, जब हम हमारे बॉस की बात करते हैं, the rule is submit to authority. नियम यह है कि जो भी आपके ऊपर अधिकार है उसके प्रति समर्पित हो जाओ, अधीन हो जाओ. Yeah, what he says, just even if you have very bright ideas, something better, he says submit. जब आपका बॉस आपको कुछ करने को कहे, यद्यपि आपके पास बहुत अच्छे करने की तरकीब हो सकती है, पर जो वो कहता है उसके प्रति अधीन रहे. If you want to convey, you can politely say, sir, I think this can be done this way. That should be our mode, but never forcing or going against the authority which God has placed. अगर आपके पास कोई काम को करने का बेहतर तरीका है भी, तो बहुत ही नम्रता से आप उन्हें सुझाव दे सकते कि क्या हम इसे ऐसे करके देखें, पर कभी भी आपके हृदय में ये नहीं होना चाहिए कि जिस अधिकार को परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है उससे बलवा करके उसके विरोध में जाकर आप कुछ करो. Because all authority is from God. क्योंकि we should believe that. क्योंकि सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ही है, हमें इसका विश्वास करना है. Yeah, many things we cannot choose. कई चीजें हैं जो हम चुन नहीं सकते, One of those is boss. और उसमें से एक चीज है बॉस. Parents, हमारे माता पिता, we cannot choose. हम उन्हें चुन नहीं सकते. God authorized, God ordained. परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, परमेश्वर ने वो अधिकार उन्हें दिया है. So I just humbly submit. और इसलिए मैं पूर्ण नम्रता से अधीन होता हूँ. In the second part of co-workers who are below me, we were talking to someone above me. पहले हमने बात किया उसकी जो हमसे ऊपर है, Now we are talking to someone below me. अब ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे नीचे है. Below me also the rule is for both of us we have the same God. और मेरे जो नीचे है उसके लिए भी नियम एक ही है कि उसका और मेरा एक ही परमेश्वर है. So I should treat him equally. और इसलिए मुझे उससे बिल्कुल समानता से व्यवहार करना है. Not take over advantage. मुझे उसका फायदा नहीं उठाना है. But just like I think many times like my own son, my own family member, how I deal, that is the way I should. मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा खुद का बेटा होता, मेरा परिवार का जन होता, तो उससे मैं कैसे व्यवहार करता, मुझे वैसा ही व्यवहार करना है. Yeah, sometimes they may take over advantage. और इस बात का कई बार वो बहुत बढ़कर फायदा उठाएंगे. So maybe you can learn, understand such a person and deal differently. फिर जब ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हम समझ जाते हैं, फिर उसे समझकर शायद हम अपना व्यवहार को बदल सकते हैं, उनसे अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं. Yeah, we need God's grace, wisdom to deal with these situations. There is no standard answer for that. इन सारे परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक ही उत्तर नहीं हो सकता. Yeah, I am also learning. मैं भी इस क्षेत्र में सीख रहा हूँ. Brother Matthew, what's a parent's role in developing or in the development of a child to an adult who serves the Lord? और ये भाई मैथ्यू के लिए है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बच्चों को बड़ा करने में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए. So, from a young age, we should tell them the Bible stories. और जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हम उनको बाइबल की कहानियाँ बता सकते हैं. And as they grow older, we should encourage them to read the Word of God. और जैसे वे बड़े होते जाते हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें प्रभु का वचन पढ़ने के लिए. Then the basic principles like telling truth. और मूलभूत जो पाए की चीज़ जो होती है उनको सच बोलना हम सिखाएं. Must tell them to tell the truth, and then of course they will still continue to tell lies, but truth will be the thing that we have to insist. और वे उनको सच बोलना, हम उनको उस पर जोर ज़्यादा दें. वो फिर भी वो झूठ बोलना शायद रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमको ज़्यादा जोर देना है कि वो सच बोले. They should be taught how to be polite and respectful to people. और उनको हमें सिखाना है कि कैसे अन्य लोगों के साथ नम्रता के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ वो पेश आए. And to be disciplined at home in the things in their own affairs. और जो भी उनके काम घर के होते हैं उसके अंदर कैसे वे अनुशासित रह सकते हैं. So even though these things are all very good, we
I mean, even as parents, I don't think I have been very faithful in all those things. और यहाँ तक कि ये सारी बातें बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक पिता के रूप में मैं सोचता हूँ कि मैंने भी विश्वास योग्यता से इन बातों को नहीं किया है. Then the children should be told that how they should become Christians. और बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि वे कैसे एक मसीही बन सकते हैं. That they have to be born again. उनका नया जन्म होना चाहिए. It is not just that they are born in the Christian family, so they are Christians. और ये इतना काफी नहीं क्योंकि वे मसीह परिवार में जन्म लेते इसलिए वे मसीही है, नहीं. So as we do all these things, there is a development with them. और जैसे इन सारी बातों को हम करते तो एक प्रगति उनके अंदर होती है. And once they make a commitment to Christ, और जब वे परमेश्वर को समर्पण करते हैं, we'll encourage them to be faithful to Christ. हम उनको प्रोत्साहित करें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे. And then as they do the things that's serving, as they do the normal things that is serving Christ. और जैसे वे साधारण बातें उनकी करते हैं वे मसीह की सेवा के रूप में करेंगे. Next question to Brother Abu. How did or do you keep in touch with your children? ये भाई अबू के लिए है. आप अपने बच्चों के साथ संपर्क में कैसे बने रहते थे या बने रहते हो? When my children were small, I made a lot of mistakes. और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो बहुत सारी गलतियां मैंने की है. I did not have the wisdom at that time to deal with them the right way. और मेरे पास तभी वो समझ या बुद्धि नहीं थी कि सही रीति से मेरे बच्चों के साथ मैं व्यवहार करूं. But I learned that later, especially after joining CFC. और मैंने बाद में जब मैं CFC में जुड़ा तो मैंने उन तरीकों को सीखा. So I learned the necessity of being honest at home, especially before children. और मैंने इस बात को सीखा कि खासकर घर के अंदर बच्चों के सामने बहुत ही ईमानदार बने रहने की जरूरत को मैंने सीखा. And I saw that started working. मैंने इसको देखा कि ये काम कर रहा है. And when they were young, the way I did not do in a godly way, I asked pardon to my children. और जब वे छोटे थे जो चीजें मैंने ईश्वरीय रूप से नहीं की थी उन चीजों के लिए मैंने अपने बच्चों से माफी मांगी. So now my children are grown up. अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं. So I deal with them as my equals. और अब मेरी ही बराबरी के समान मेरे बच्चों के साथ व्यवहार करता हूँ. And in a friendly way. और एक मित्रता के साथ. And I take any family decisions, I take their inputs. और जब भी परिवार के संबंध में कोई निर्णय लेना होता है तो उनकी बच्चों की राय में लेता हूँ. And when I see some value system or some virtue in them, I immediately appreciate that. और कुछ ऐसे मूल्य या गुणों को मेरे बच्चों में देखता हूँ जो अच्छा या उम्दा है उनकी मैं सराहना करता हूँ. Very often I tell my son and daughter that I'm really proud of you. और बहुत बार मेरे बेटे बेटी को मैं कहता हूँ कि मैं तुम पर बहुत ही गर्व करता हूँ. I was not dishonest. I can always see some good things which I can honestly say and appreciate. और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ ऐसे गुणों को उनके अंदर देख कर कि उनकी मैं सराहना कर सकूँ और गर्व कर सकूँ. Thank you, brother. Brother Matthew, what are your thoughts about heaven and eternity? भाई मैथ्यू के लिए स्वर्ग और अनंत काल के बारे में आपके क्या विचार है? That's a wonderful question. ये बहुत ही अद्भुत सवाल है. So looking forward to being there. और जैसे हम उसका इंतजार करते हैं उस अनंत काल में जाने के लिए, I think the first person that I would want to see is my Lord Jesus Christ. और सबसे प्रथम व्यक्ति जिसको मैं देखना चाहूंगा वहां वो यीशु मसीह होगा. And I would want to straight away go and hug him. और सबसे पहले जाकर मैं उसको पूरी तरह से गले मिलना चाहूंगा. I think I would definitely recognize him. और मैं बहुत आसानी से उसको पहचान पाऊंगा. Because I've talked to him on earth. और क्योंकि उसके बारे में ही मुझे सिखाया गया है धरती पर. And eternity will be a wonderful time where we can talk about the things that God has done in our lives. और अनंत काल वो एक ऐसा समय होगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे. The stories of so many of the saints. और जो संत लोग हैं उनकी बहुत सारी ऐसी गवाहियां या कहानियां को हम सुनेंगे. We'll be hearing over and over from time to time. और हम और अधिक समय बीतते जाएगा और उन बातों को सुनते जाएंगे. And the wonderful presence of God, so that's how eternity will be spent. और ये प्रभु की अद्भुत उपस्थिति वहां पर होगी, वैसे हम अनंत काल में अपना समय बिताएंगे. We've come to the last question, unfortunately. और दुर्भाग्यपूर्ण ये अंतिम हमारा सवाल होगा.
This question, Brother Abu and Brother John will partially share few points. और भाई अबू और भाई जॉन दोनों ही साथ में मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। The question is how do we practically approach financial difficulties? Is life insurance and pension plans okay to have? और आप व्यवहारिक रूप में वित्तीय आर्थिक कठिनाइयों का सामना कैसे करते हो? क्या जीवन बीमा और पेंशन योजनाओं को लेना सही या ठीक बात है? Yes, one thing I learned which was very helpful, I think it will be helpful to everyone, और एक चीज जो मैंने सीखी है जो मेरे लिए बहुत ही सहायता करने वाली और हम सभी के लिए हो सकता है, is to recognize our financial boundary which God has kept around us for a while. और परमेश्वर ने वर्तमान हालात में जो भी आर्थिक सीमाएं हमारे चारों ओर रखी है उस सीमाओं को पहचानना या जानना। Yeah, never cross that boundary. वो सीमाओं को कभी आप उल्लंघन ना करें, उसको पार ना करें। Never imitate others or copy others and then try to stretch our limits. और किसी को भी आप कॉपी न करें, उसके समान न बनने की कोशिश न करें और उस सीमा को लांघने की कोशिश न करें। Maybe Lord will enlarge that boundary later. और हो सकता है परमेश्वर उन सीमाओं का विस्तार बाद में जरूर बढ़ाएगा। But any point of time we should learn to live within the family budget. लेकिन कभी भी हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो परिवार का जो बजट है या आर्थिक सीमा है उसी के भीतर हम अपने जीवन को जिए। There can be a strong temptation to compare with other brothers and sisters who may be better off in the church. और हो सकता है बहुत ही मजबूती के साथ ये प्रलोभन आ सकता है जो कलीसिया में हमसे बेहतर भाई बहन हैं उनके जीवन के साथ अपने जीवन की हम तुलना करें। That's a very dangerous thing about which we will regret later. और ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है जिसके बारे में बाद में खेद या पछतावा करेंगे। It's a godly, Bible say godliness with the contentment is great gain. और बाइबल कहता है कि भक्ति में जो संतुष्टि है, जो भक्ति के साथ जो संतुष्टि है वो बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि है। So whatever God has put in our hand now, we should learn to be content and we should be grateful for that. और जो भी परमेश्वर ने वर्तमान में हमारे हाथ में दिया है उसके अंदर हमें संतुष्ट रहना है और उसके लिए हमें धन्यवादी होना है। We should make every effort to avoid borrowing and be in debt. और हमें सारे प्रयत्न करने चाहिए कि हम कर्ज न ले। So that's a tremendous learning which I learned from CC. I am very grateful for that. और मैंने इस बात को बहुत ही अच्छे से सीखा और इस बात के लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। And if possible within our limits, whatever small, it is good to save something for future. और यदि संभव है तो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ न कुछ हम सेविंग कर सकते हैं। Even if our income is limited, even small amounts also, if you have, it is good to have a habit of saving. और आपकी आवक जितनी भी क्यों ना हो, ये अच्छी एक आदत है कि आप उसके अंदर से कुछ न कुछ बचत को बनाए रखें। Second also, I guess. Yes, correct. If we can afford, there is nothing wrong in going for life insurance or pension plans. और यदि हमारे पास उतना पैसा है, यदि जीवन बीमा या पेंशन योजना हम ले सकते हैं। I know not all can afford it. और मैं जानता हूं कि सारे लोग ये खरीद नहीं सकते हैं। I don't have a life insurance. और मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। But I know nothing wrong in having a life insurance. लेकिन मैं ये जानता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस होने में कोई गलती या गलत बात नहीं है। But there is something which the Lord taught me. It is that we should not, our trust should not be in the uncertainty of riches. लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि धन की जो अनिश्चितता है उस पर भरोसा हमको नहीं लगाना है। Our trust should be in the Lord who richly provides all things to enjoy. लेकिन हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए जो हमें भरपूरी के साथ हमारी जरूरत और आनंद उठाने के लिए प्रयोजन करता है। Meaning, if we are not able to buy a life insurance or a pension plan, don't worry about, no need of being anxious about it. और इसका मतलब यदि जीवन बीमा या पेंशन योजना हम नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं। It is the Lord who ultimately provides. We can't trust in such things. और ये परमेश्वर ही है जो प्रयोजन करता है, इन सारी बातों के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। At the same time, those who can afford, as a discipline, it's good to invest for the future. और यदि कोई इसको खरीद सकते हैं तो ये अच्छी बात होगी कि आप अनुशासित एक बचत के अनुसार इस जीवन बीमा या पेंशन योजनाओं को खरीद सकते हैं। It is not wrong. और ये गलत बात नहीं होगी।
I just want to add one thing. Please don't underestimate your partner in this matter. और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि इन आर्थिक मामले के संबंध के अंदर आपके जो पार्टनर या सहकर साथी जो परमेश्वर ने दिया है उसको आप नजरअंदाज न करें या नीचा ना देखें. Sometimes they are better than us in managing money. और खास करके हमसे बेहतर उन पैसों को मैनेज करने में होते हैं. And they can really help us. और वो हमारी बहुत ही अच्छे से इस बात में सहायता कर सकते हैं. Whatever you do, कुछ भी जो भी आप करते हैं do it together. आप दोनों साथ मिलकर करें. Husband and wife together. पति और पत्नी साथ मिलकर करें. That is the safety. और यही इसमें ही सुरक्षा That है. will build the home. और यही एक घर का निर्माण करेगा. Thank you. Thank you, dear brothers. और धन्यवाद भाइयों. It was a wide spectrum of thoughts and things, tips for us to take back. और बहुत ही विशाल ऐसा एक विस्तृत ये एक सत्र था जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को हम वापस लेकर लौट सकते हैं. I think in 1 hour we heard about so many different things. और 1 घंटे के अंदर बहुत सारे विषय के बारे में हमने आज सुना है. I'm going to spend another hour listening to this repeat telecast. और 1 घंटा और हम इसमें ऊपर बिताएंगे. मैं बिताने वाला हूँ ताकि इन बातों को दोहरा कर मैं सुन पाऊँ. So thank you the brothers for preparing and answering. और धन्यवाद भाइयों इस पर आपने जो तैयारी की और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. Sorry dear church, we took 10 minutes extra. और माफ़ी चाहते हैं 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए उसके लिए. So brother Joby or brother Biju. Next time it is our turn to take the interview. Sure, I won't be on the panel. Thank you very much for patiently listening to us, maybe imperfect answers. और to questions. बहुत बहुत धन्यवाद धीरज से इन प्रश्नों के उत्तर को सुनने के लिए. हो सकता है कि ये सिद्ध उत्तर नहीं होंगे आपके लिए.